غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کے لیے ملک گیر آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے ملکی تاریخ میں پہلی بار فارن ایکٹ 1946 کے تحت تمام صوبوں کو حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق معمولی جرائم میں زیر تفتیش اور سزا یافتہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کا عمل بھی مکمل کر لیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے، مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ساتھ موجود ہیں۔ لاہور سے مرزا رمضان بیگ اپڈیٹ کریں گے، کراچی سے شاہمیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد سے غزالہ نورین سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ پہلے لاہور کی بات کر لیتے ہیں، مرزا رمضان بیگ ہمارے ساتھ ہیں۔ رمضان بیگ بتائیے گا، فارن ایکٹ 1946 کے تحت حکم نامہ جاری ہو چکا، جو غیر قانونی مقیم غیر ملکی ہیں ان کی بے دخلی کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں کارروائیاں اب کیا کی جا رہی ہیں، اور اسپیشلی جو ہولڈنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پر کیا اقدامات ہیں؟ جی بالکل جی، لاہور سمیت پنجاب کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر ہولڈنگ ایریاز بنائے گئے ہیں، اور اس وقت میں ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس موجود ہوں، اور میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی عارضی کیمپ بنایا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر آئی جی پنجاب کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو غیر قانونی اور غیر ملکیوں کے انخلاء کے متعلق جو معلومات ہے وہ اکٹھی کر لی گئی ہیں، اور اس حوالے سے لاہور کے مختلف علاقوں میں اس حوالے سے کریک ڈاؤن بھی شروع کیا گیا ہے، اور جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں ان کی پکڑ دکڑ کا عمل بھی جاری ہے، اور جن کے پاس دستاویزات ہیں وہ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ وہ لیگل طریقے سے وہ رہائش پذیر یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو عارضی کیمپ کے اندر، جیسے ایف آئی اے کی ٹیم ہے، نادرا کی ٹیمیں ہیں، یہاں پہ یہ کیمپ جو عارضی لگا ہے یہاں پر جو باشندے ہیں ان کو لایا جائے گا اور ان کی سکیننگ کی جائے گی، سب چیک کیا جائے گا۔ جو نادرا کی طرف سے سافٹ ویئر جو استعمال کیا جائے گا وہ ایف آئی اے کی ٹیم اور نادرا اس کو چیک کرے گی، اور اس کے بعد ایک پروسیس کے ذریعے ان کو یہاں پر رکھا جائے گا۔ یہاں پر کھانے پینے کا بھی باقاعدہ طور پر بندوبست کیا گیا ہے، اور جو ٹیموں کا جو ان کو دیکھ رہی ہے اس حوالے سے بھی جو متعلقہ ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی صاحبان ہیں وہ بھی یہاں پر گائے بگائے چکر لگا رہے ہیں، اور لاہور کے مختلف علاقوں میں یہ عارضی کیمپ بنائے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو شہر کے جہاں جہاں پر بھی عارضی کیمپ بنائے گئے، ابھی تک جو غیر ملکی یہاں پر کوئی لایا نہیں گیا، لیکن آج کیونکہ رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل درآمد شروع کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کے مرحلہ وار جو راول پنڈی ہے، ملتان ہے، خانیوال ہے، فیصل آباد ہے، شیخو پور ہے، لئی ہے، وہاں پہ مرحلہ وار جو ٹیمیں ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیں گی، اور جو غیر قانونی طور پر لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ آپ کو میں یہاں پر یہ بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ جو عارضی کیمپ بنائے گئے ہیں وہاں پر ایف آئی اے کی ٹیمیں جو ارد گرد افغان بستیاں ہیں وہاں پر بھی وہ چھاپے مار رہی ہیں، اور ان کی ٹھیک ہے، کارروائی وہاں پر بھی کی جا رہی ہے۔ رمضان بیگ ساتھ رہیے گا، کراچی سے شاہمیر خان سے اس بارے میں جان لیتے ہیں۔ شاہمیر، حاجی کیمپ کی ماڑی میں ہولڈنگ سینٹر بنایا گیا تھا، یہاں پر اقدامات کیا ہیں اور کتنے افغان باشندے یا دیگر غیر ملکی یہاں پر اب تک لائے گئے ہیں؟ جی بالکل، گزشتہ 12 گھنٹے کی اگر دورانیے کا جائزہ لیا جائے تو اب تک صرف 7 ایسے افغان باشندے ہیں جن کو ہولڈنگ کیمپ پہ منتقل کیا گیا ہے۔ سلطان آباد حاجی کیمپ پہ یہ ہولڈنگ کیمپ بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ انتظامات ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ روز ہی مکمل کر لیے گئے تھے۔ نادرا کی وینز یہاں پہ انسٹال کر دی گئی تھی، اسپیشل برانچ کے اہلکار ان کا عملہ یہاں پہ موجود تھا، ایف آئی اے کی ٹیمیں یہاں پہ موجود تھیں، تاہم جو 7 غیر ملکی یہاں پہ منتقل کیا گیا پولیس کی جانب سے ان کے بھی قوائف چیک کیے جا رہے ہیں، ان کی رجسٹریشن چیک کی جا رہی ہے، تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نادرا کی مدد سے تمام تر جو جانچ پڑتال کی جا رہی ہے ان کے شناختی قوائف کی۔ اگر کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم پایا جاتا ہے تو اس کو یہیں پہ کچھ دیر ہولڈ کیا جائے گا، رکھا جائے گا، اور پھر جیسی ایک مخصوص تعداد پوری ہو جاتی ہے تو پھر ان کو یہاں سے بسوں کے ذریعے افغانستان یا بارڈر کے راستے روانہ کیا جائے گا۔ تاہم جو انتظامیہ ہے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ایکسپیکٹڈ ہے 300 سے 400 لوگ کے قریب جو ہے وہ یہاں پہ مختلف بسوں کے ذریعے پہنچائے جائیں گے اس ہولڈنگ کیمپ پہ، اور پھر یہاں پہ جلد از جلد ان کی تمام تر چیکنگ کے بعد، اسکریننگ کے بعد ان کو یہیں سے بسوں کے راستے روانہ کر دیا جائے گا۔ انتظامات کی بات کی جائے تو یہاں پہ مختلف کیمپس لگائے گئے ہیں، میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے تاکہ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہوتی ہے
तो उसको फौरी तौर पे जो यहाँ पे तिब्बी इमदाद ठीक है, फराहम की तमाम जाए, तरह खाने के इंतजामात यहाँ पर मुकम्मल किए गए हैं। शामिर साथ रहिएगा, इस्लामाबाद चलते हैं, गजाला नौरीन हमारे साथ हैं। गजाला, निगरान वज़ीर आज़म का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर मुकीम गैर मुल्की हैं या अफ़गानी हैं, उन्होंने अपने फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी बना रखे हैं। तो क्या ऐसा मैकेनिज़्म मुरतब किया गया है कि तस्दीक हो सके कि किसी के पास जाली डॉक्यूमेंट्स हैं या असल शनाख्ती दस्तावेज़ात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे नुमाइंदगान ने भी बताया कि गैर मुल्की जो मुकीम ऐसे अफराद थे जो गैर कानूनी तौर पर थे, उनकी रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी की डेड लाइन तो ख़त्म हो चुकी है और आज से बाकायदा हुकूमती इदारों के एक्शंस के ज़रिए इन अफराद को वापस इनके अपने ममालिक में भेजने के अमल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ये तमाम जो काम है ये मरहला वार किया जा रहा है। पहले मरहले में ऐसे तमाम अफराद को बाहर भेजा जाएगा, उनके अपने ममालिक में भेजा जाएगा जिनके कागजात नामुकम्मल हैं या जो कि यहाँ पर फेक कागजात के साथ पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। अब यहाँ पर अगर अपने नाज़रीन को इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ कि इस्लामाबाद में आज सुबह 67 ऐसे गैर कानूनी अफगान शहरियों को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया गया 2 खसूसी बसों के ज़रिए जो कि इस्लामाबाद में मुकीम थे। इन बसों के ज़रिए इन तमाम 67 अफगान बाशिंदों को पहले खैबर पख्तूनख्वा और फिर वहाँ से अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पर सुनो के नाज़रीन के लिए हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं कि इन तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाया जाए और ये तमाम अफराद अपने अपने ममालिक में बाइज़्ज़त तरीके के साथ वापस जाएँ। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो होल्डिंग सेंटर्स हैं या होल्डिंग पॉइंट्स हैं वो कायम किए गए हैं। ऐसा ही एक होल्डिंग सेंटर इस्लामाबाद में कायम किया गया हाजी कैंप के अंदर और इस वक्त हम हाजी कैंप के बाहर ही मौजूद हैं। हाजी कैंप में ऐसे तमाम अफराद को ठहराने के लिए मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं जिनको उनके अपने ममालिक भेजा जाएगा। ताहम अगर हम आज की बात करें तो अभी तक इस हाजी कैंप के होल्डिंग सेंटर में किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को नहीं लाया गया। ताहम इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया है कि इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। इस्लामाबाद की हद तक अगर बात करें तो 67 अफराद को आज सुबह रवाना किया गया। एक खसूसी प्रवास के ज़रिए 136 वो अफराद थे जिनको के एक खसूसी प्रवास के ज़रिए बरतानिया रवाना किया गया था 5 रोज़ कबल। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि UNHCR का डाटा अगर देखें तो जून 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे मौजूद हैं उनकी तादाद 41,000 है। तो अगर इनमें से कुछ रज़ाकाराना तौर पर वापस चले गए हैं, पिछले 1 महीने के दौरान हमने देखा बहुत सारों को हुकूमत अपने इंतजामात के जरिए बाइज्जत वापस भेज रही है। तो ठीक है, बाइज्जत तरीके से इनकी वापसी मुमकिन बनाई जा रही है। गजाला साथ रहिएगा, पेशावर का रुख कर लेते हैं। काशिफ अजीज ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, चूँकि पेशावर का और KP के जो दीगर एरियाज़ हैं यहाँ पर खासी कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना है। जो जमशुदा कबाइली इलाका जात हैं वहाँ पर भी बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफ़गानी मौजूद हैं, तो किस तरह से उनकी बेदखली को अब यकीनी बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाक अफ़गान तुर्खम बॉर्डर से कुछ किलोमीटर के फासले पे हूँ। यहाँ पर इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, आप मेरे अकब में देख रहे हैं एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद जो है उनका यहाँ पर जो है करीब ही कैंप बना हुआ है जहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उनको वैन्स के ज़रिए पाक अफ़गान तुर्खम बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान भिजवाया जाता है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कल तक तमाम जो इंतज़ामात है वो कैंप में मुकम्मल कर लिए गए थे और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि कैंप में नादरा के वैन्स जो है वो भी खड़े हैं, जो जितने भी गैर मुल्की है उनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होती है। इसके साथ वहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगा है, PDMA की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है और इसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी वहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे अकब में सैकड़ों की तादाद में फैमिली जो है घंटों से यहाँ पर इंतज़ार कर रही है और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी कर रही है और ये लोग जो है शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर में भी इनके लिए आर्जी कैंप बनाया गया है नासिर बाग में, जहाँ पर इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। वहाँ पर PDMA की टीमें भी मौजूद है। इसके साथ रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार है वो भी वहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पाक अफ़गान तुर्खम बॉर्डर के करीब जो है
पंजाब से भी काफ़ी ज़्यादा हमारे अफ़गान भाई जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला से भी जो गैर मुल्की बाशिंदे जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ अगर फैक्ट एंड फिगर की बात करें तो 1 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो 6 अक्टूबर से कल तक जो है वो अफ़गान जो है यहाँ से पाकिस्तान से जा चुके हैं, और अभी भी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है जारी है। और इसके साथ अफ़गानी जो है वो तुरखम बॉर्डर के ज़रिए जो है उनको वेंस के ज़रिए जो है वो भिजवाया जाता है। जी ठीक है, काशिफ अजीज़ साथ रहिएगा। रमज़ान बेग ये बताइएगा कि लाहौर के जो चंद एरियाज़ हैं वहाँ पर कच्ची बस्तियों में तो इस तरह के गैर मुल्की जो गैर कानूनी है वो मौजूद तो थे ही, लेकिन पॉश एरियाज़ में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे गैर कानूनी मुकीम लोग हैं कि जिनकी शनाख्त शायद इतना आसान नहीं होगा। तो इस सिलसिले में क्या ऐसा खुसूसी मैकेनिज़्म बनाया गया है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि वहाँ से इन लोगों को जो है वो होल्डिंग सेंटर्स पर लाया जा सके? जी बिल्कुल जी, पहली बात तो ये है कि जैसे ये 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन थी ख़त्म हुई, उसके बाद एक डाटा भी शेयर किया गया कि पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर 33,000 से ज़ायद जो हैं गैर कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की हैं वो रहाइश पजीर हैं। इस हवाले से भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और IG पंजाब की तरफ से फहरिस्तें भी तैयार की गई और उनके बाकायदा तौर पर उनके नामों की जो फहरिस्त है वो निकलवाई जा रही है। और दूसरी तरफ इनको अगर इनखला की बात की जाए तो जो IG पंजाब है और DAG ऑपरेशन लाहौर और SSP लाहौर ने अपने FIA का जो अमला है, नादरा का जो अमला है और जो पुलिस का अमला, उनके साथ एक मीटिंग भी की, इजलास भी किया गया, और जो आरजी कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर टीमें बनाई गई हैं कि अगर कोई गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की यहाँ पर आता है तो उसकी बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन की जाएगी, स्कैनिंग की जाएगी। ठीक है, स्कैनिंग, मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए तमाम तर कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा रमज़ान बेग लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, कराची से शामिर खान अपडेट कर रहे थे, पेशावर से काशिफ अजीज़ और इस्लामाबाद से गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।